انتخابات کے قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی، سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار متحرک، ڈور ٹو ڈور کیمپین، جلسے جلوس اور سیاسی اجتماعات کے انعقاد، مختلف جماعتوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی سیاسی جوڑ توڑ پر بھی بات چیت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، رحیم یار خان اور مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف خانیوال میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ پاکستان کا ایران میں مرگ بر سرمچار آپریشن، کارروائی میں کالعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف کے خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، ڈرون، راکٹ اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے حملوں میں انتہائی احتیاط برتی گئی، شہریوں کی حفاظت یقینی بنانا مسلح افواج کی ذمہ داری ہے، عوام کی حمایت سے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں، آئی ایس پی آر۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، ایران کو منہ توڑ جواب دینا خوش آئند ہے، امن و سلامتی کے لیے اقدام ضروری تھا، پاکستان بلوچ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا پورا حق رکھتا ہے، ایران کی جانب سے انتہائی بزدلانہ کارروائی کی گئی، معصوم بچوں کو مارنا کہاں کی بہادری ہے، ایران کے حملے اور پاکستان کی جوابی کارروائی پر عوام کا رد عمل۔ علیحدگی پسند اور دہشت گرد تنظیمیں ایران میں بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، پاکستان کی مسلح افواج نے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے والے عناصر کو نہ صرف بھرپور جواب دیا ہے بلکہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دشمن کبھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوگا، نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ روسی وزارت خارجہ کا پاکستان اور ایران کے مابین پیدا ہونے والی کشیدگی پر رد عمل، روس کا ایران پاکستان سرحدی علاقوں میں حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار، پاکستان اور ایران کو کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کو آگے بڑھانا چاہیے، طاقت کے استعمال سے خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، روسی وزارت خارجہ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز میں تیزی، 100 انڈیکس میں 685 پوائنٹس کا اضافہ، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 63,885 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری، شمالی اور وسطی غزہ میں تازہ صہیونی حملے، مزید 77 شہادتیں، تعداد 24,620 ہو گئی، مغربی کنارے کے علاقے تل گرم کا محاصرہ مسلسل دوسرے روز بھی جاری، اسرائیلی فورسز علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، کئی مقامات پر فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ بھارتی ریاست منی پور میں پولیس کی ظالمانہ کارروائیوں سے تنگ، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز، مشتعل ہجوم نے بھوپال پولیس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کر دیا، باغی گروہ اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 3 فوجی اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے، 3 مئی سے جاری فسادات میں اب تک 1,000 سے زائد افراد ہلاک اور 60,000 سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، 603 افغان شہریوں پر مشتمل مزید 76 افغان خاندان اپنے ملک لوٹ گئے، پاکستان چھوڑ کر جانے والے شہریوں کی مجموعی تعداد 4,70,999 ہو گئی۔ ملک بھر میں بجلی چوری کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن جاری، 7 سے 14 جنوری کے دوران ملک بھر سے 2 ارب سے زائد روپے وصول، 261 ملزمان گرفتار، 1 ستمبر سے جاری ملک گیر مہم کے دوران چوروں اور نادہندگان سے اب تک 66 ارب روپے سے زائد وصول کیے جا چکے۔ شمالی وزیرستان میران شاہ میں یوتھ کنونشن 2024 کا انعقاد، بڑی تعداد میں طلباء اور طالبات کی شرکت، تاریخ ساز یوتھ کنونشن میں نوجوان نسل کو علاقائی صورتحال، درپیش مشکلات، دیرپا قیام امن اور زیر عمل ترقیاتی منصوبوں سے روشناس کروایا گیا، اختتامی تقریب میں کور کمانڈر پشاور کا شرکاء سے خطاب۔
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज क्राइस्ट चर्च में चौथा मैच। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। कौमी टीम में एक तब्दीली, आजम खान की जगह साहिबजादा फरहान प्लेइंग 11 में शामिल। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सऊदी अरब के सहरा में डाकार मोटर रैली। फ्रांस के ग्योरलैंड शेबिशरेट की लगातार दूसरी कामयाबी। रैली का पेनल्टीमेट 11वां मरहला अपने नाम कर लिया। 9 मरतबा के डाकार चैंपियन फ्रांस के सेबेस्टियन लुइब की गाड़ी तकनीकी खराबी का शिकार। स्पेन के कार्लोस सिंस ने मजमूई बरतरी में मजीद इजाफा कर लिया। मोटरसाइकिल कैटेगरी में बोत्सवाना के रॉस ब्रेंच फाते रहे। ऑस्ट्रिया के फ्री स्टाइल माउंटेन बाइकर फैबियो वेम्बर ने अब किया अपना बचपन का ख्वाब मुकम्मल। दुनिया की सबसे बड़ी डाउनहिल स्की रेस के मुकाम पर साइकिल चलाई। ढलवान की जानिब 107 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर किया। फैबियो वेम्बर ने नीचे की जानिब आते हुए मुतादिद स्टंट्स भी दिखाए। 14 मीटर बुलंद और 36 मीटर तवील जंप का भी मुजाहिरा किया। और कतर में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलिया ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने शाम को 1 गोल से हराया। फलस्तीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रसा। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात भी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। नाज़रीन, इंतखाबात के करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार मुतहर्रिक, डोर टू डोर कैंपेन, जलसे जुलूस और सियासी इज्तिमात का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी सियासी जोड़ तोड़ पर भी बातचीत जारी है। अगर कोयटा की बात करें तो कोयटा के हलका NA 262 से 38 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। इनमें से 21 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद। जी इसरार। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में आम इंतखाबात की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं, इनमें दिन ब दिन तेज़ी देखने को मिल रही है। बात करें NA 262 की, जहां पर 38 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 21 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें एक खातून सकीना अब्दुल्ला भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं इस हल्के से। बात करें सियासी पार्टियों की, जिनमें पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह खुशहाल खान काकड़, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नवाब अयाज खान जोगीज़ई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद रमज़ान, जबकि आदिल बाज़ई और जमीयत उलमा इस्लाम के मलिक सिकंदर एडवोकेट भी इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के हक में दस्तबरदार भी हो रहे हैं। जी इसरार, बहुत शुक्रिया, आप कोयटा से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, जेहलम की बात करें तो आम इंतखाबात की गहमा गहमी जेहलम में भी बढ़ गई है। 2 कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बली के हलकों में मजमूई तौर पर 108 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। हमारे नुमाइंदा नईम अख्तर भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। जी नईम, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह जिला जेहलम में भी रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जिला में 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली के लिए इंतखाबी निशानात जारी कर दिए गए हैं। हल्का NA 60 में 18, जबकि हल्का NA 61 में 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह PP 24 में 30, PP 25 में 25 और PP 26 में 22 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। NA 60, 61 और PP
25 और 26 में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मौजूद है। जबकि PP 24 में मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, इसलिए यहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार नुमाया हैं। जिले में 766 पोलिंग स्टेशनों में से मर्दों के लिए 171, खवातीन के लिए भी 171, जबकि मुश्तरका 424 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया नईम आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ आज खानेवाल जाएंगी, जहां वो एक बड़े जलसायाम से खिताब करेंगी। रेलवे ग्राउंड खानेवाल में होने वाले इस जलसे में पार्टी के दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। मरियम नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने और पाकिस्तान की माशी मजबूती से मुताल्लिक कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की हिकमत अमली पर बात करेंगी। ये जलसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा हैं। साबिक सूबाई वजीर हाजी इरफान अहमद डाहा, साबिक MS मोहम्मद खान डाहा, चौधरी इफ्तिखार नज़ीर, मियां असलम बोदला, साबिक MP राना सलीम हनीफ ने रात गए इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम जारी है। पीपल्स पार्टी आज रहीम यार खान में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसायाम से खिताब करेंगे। जलसे में पीपल्स पार्टी की मरकजी, सूबाई और मकामी क़यादत शरीक होगी। नाज़रीन, मुल्क के तीसरे बड़े सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के कुल कितने हलके हैं और उनकी तकसीम किस अंदाज से बनती है, देखते हैं इलेक्शन सेल की ये रिपोर्ट। आबादी के लिहाज से मुल्क का तीसरा बड़ा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, जो जुग्राफियाई तौर पर मुल्क के शिमाली हिस्से में वाक़ है। खैबर पख्तूनख्वा के अजला को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, शिमाली अजला और जुनूबी अजला। शिमाली अजला मालाकंड डिवीजन और हज़ारा डिवीजन पर मुश्तमिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जुनूबी अजला के कुल 5 डिवीजन हैं। मालाकंड डिवीजन की अगर बात की जाए तो ये 8 अजला पर मुश्तमिल है, जिसमें कौमी असम्बली की कुल 11 नशिस्तें हैं। इसी तरह हज़ारा डिवीजन के कुल 8 अजला हैं, जिनमें कौमी असम्बली की कुल 7 नशिस्तें हैं। मर्दान डिवीजन की बात की जाए तो इसके कुल 2 अजला हैं और इसमें कौमी असम्बली की कुल 5 नशिस्तें मौजूद हैं। जबकि पेशावर डिवीजन 5 अजला पर मुश्तमिल है और यहाँ कौमी असम्बली की 11 नशिस्तें हैं। कोहाट डिवीजन की बात की जाए तो कोहाट डिवीजन के 5 अजला हैं और इन 5 अजला की कुल नशिस्तें 4 बनती हैं। बन्नू डिवीजन के भी 3 अजला में कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर 3 नशिस्तें मौजूद हैं। इसी तरह डेरा इस्माइल खान डिवीजन के 3 अजला में कौमी असम्बली की कुल 4 नशिस्तें हैं। शिमाली अजला मालाकंड डिवीजन और हज़ारा डिवीजन पर मुश्तमिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सियासी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। उन्होंने कब कब इंतखाबात में हिस्सा लिया, कितनी बार जीते और कितने वोट हासिल करते रहे। रिपोर्ट तैयार की है वक़ार हैदर ने। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने सियासत का आगाज अपने आबाई हल्का NA 119 मुल्तान से किया और पहले ही इंतखाब में विनर करार पाए। 1985 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया। उनके मद्दे मुकाबिल थे नसीरुद्दीन शाह। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 47,900 जबकि नसीरुद्दीन शाह ने 38,406 वोट हासिल किए। साल 1988 में यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और फतह एक बार फिर उनका मुकद्दर ठहरी। उन्होंने 58,300 वोट हासिल किए, जबकि हारने वाले थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो 41,957 वोट हासिल कर पाए। इसी तरह 1990 के आम इंतखाबात में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मर्द मैदान ठहरे। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल मखदूम सैयद हामिद रज़ा के खिलाफ 60,076 वोट हासिल किए। साल 1993 में भी मुल्तान के हल्का NA 114 से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने मद्दे मुकाबिल हाजी सिकंदर हजात बोसान को शिकस्त दी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 72,078 वोट हासिल किए, जबकि मद्दे मुकाबिल हाजी सिकंदर हजात बोसान के 48,057 वोट थे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 1997 के इंतखाबात में हल्का NA 114 मुल्तान से नाकाम रहे। मद्दे मुकाबिल सिकंदर हजात बोसान कामयाब हुए थे। इसी तरह 2008 में भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मैदान मार लिया था। 77,664 वोट हासिल किए, जबकि मद्दे मुकाबिल हाजी सिकंदर हजात बोसान ने 45,765 वोट हासिल किए। 2018 के आम इंतखाबात में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने 74,443 वोट हासिल किए, लेकिन मद्दे मुकाबिल मोहम्मद इब्राहिम 83,304 वोट लेकर जीत गए। इसके बाद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी की जानिब से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुए और ताहाल सेनेटर हैं। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت انتخابات کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اس موقع پر ایس پی سیکیورٹی نے انتخابات کے سیکیورٹی پلان سے متعلق بریفنگ دی۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے جامع سیکیورٹی پلان مرتب کیا جائے گا۔ CCPO لاہور کے متعلقہ افسران کو عام انتخابات سے متعلق فول پروف سیکیورٹی انتظامات جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی کارروائی ایران کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف تھی۔ پاکستان اپنے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہاں ہے اور ہمیشہ بات چیت کے ذریعے چیلنجز سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے موجودہ پیش رفت کی روشنی میں اپنے غیر ملکی دورے مختصر کر دیے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سمیع اللہ کی اس رپورٹ میں۔ وزارت خارجہ میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ہمارے سنگین تحفظات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج صبح ایران کے صوبے سیستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی گئی۔ انٹیلیجنس آپریشن میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ Over the last several years in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists calling themselves Sarmachars on the ungoverned spaces inside Iran. Because of lack of action on our serious concerns, this morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایران کی سلامتی اور خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاک ایران صورتحال کے پیش نظر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دورہ ڈیوس اور نگران وزیر خارجہ نے یوگنڈا کا دورہ مختصر کر کے وطن آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے جنوری 1990 کے دوران بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں ہونے والے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ISPR نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے خصوصی آپریشن مرگ بر سرمچار کی تفصیلات جاری کر دی ہیں، جس کے مطابق ایران میں نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنام دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ پاکستان نے آپریشن میں حملہ آور ڈرونز، راکٹس اور دیگر جدید ترین ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ تفصیل رانا شہزاد السلام کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاک افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان پر حالیہ فضائی حملے پر آج ایرانی صوبے سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مصدقہ خفیہ اطلاع پر بھرپور جوابی کارروائی کی گئی، جس میں کالعدم دہشت گرد تنظیموں بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ یہ پناہ گاہیں بدنام زمانہ دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین، بجار عرف سوغت، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے حملوں میں انتہائی احتیاط برتی گئی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مستقل تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا عزم ہے کہ پاکستان کی علاقائی حدود کی خود مختاری کو ہر صورت میں محفوظ بنائیں گے۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام ضروری ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کے خلاف تحفظ کو یقینی بنانا پاکستانی عوام کی حمایت سے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مسلح افواج کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے دو پڑوسی برادر ملکوں سے بات چیت اور تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایہ برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ مسائل کا حل صرف مذاکرات میں ہی ہے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے والے عناصر کو جواب دے کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔
मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया है और पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश में खुद बेनकाब हो गई है। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में दुश्मन कुव्वतें अंदरूनी खलफिशार पैदा करने में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रहे थे। पहले भी वाज़े किया था कि दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन कुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान और ईरान के माबैन पैदा होने वाली कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। रूस ने ईरान पाकिस्तान सरहदी इलाकों में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में कमी और सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने रद्द-ए-अमल में रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल से खित्ते में कशीदगी बढ़ सकती है। यकजहती कमेटी की बहरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब भारत बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करके अपने मजमूम अजाइम के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब वीडियो में देखा जा सकता है कि महरंग बलोच ईरान में किए जाने वाले स्ट्राइक में हलाक बलोच दहशतगर्दों का इकरार कर रही है। भारत बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करके अपने मजमूम अजाइम के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब भारत बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करके अपने मजमूम अजाइम के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अम दुश्मन भारत तवील अरसे से पाकिस्तान बिलखुसूस बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करके अपने अजाइम के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस तनाजुर में बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून महरंग बलोच है जो कि बलोचों के हकूक और मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर मुखालिफ धरने में शरीक हैं। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। भारत बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करके अपने मजमूम अजाइम के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महरंग बलोच ईरान में किए जाने वाले स्ट्राइक में हलाक बलोच दहशतगर्दों का इकरार कर रही है। भारत बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करके अपने मजमूम अजाइम के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब भारत बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करके अपने अजाइम के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महरंग बलोच ईरान में किए जाने वाले स्ट्राइक में हलाक बलोच दहशतगर्दों का इकरार कर रही है। नाज़रीन, पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। ईरान के हमले और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर अवाम ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमनो सलामती के लिए ये इकदाम जरूरी था। पाकिस्तान बलोच दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का पूरा हक रखता है। ईरान की जानिब से इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। जो पाकिस्तान ने उनके तीन जो मलबे के जगहों में हमले किए जहाँ पर टेररिस्ट मलबे की आबाद थे, तो पाकिस्तान के इस हमले की हम इस हमले को अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान ने जवाब जो दिया है, मेरे ख्याल में ये तो बेहतर हुआ कि जवाब देना भी चाहिए था हमारी पाक फौज की तरफ से। बल्कि उनको कहा भी गया था कि आप इसके ऊपर तहरीरी तौर पे आपने माफीनामा मांगे, लेकिन उन्होंने जब ये नहीं किया तो हमारी पाक फौज ने उसके जो है बनिस्बत उन्होंने उस पर एक जवाबी कार्रवाई दी और ये जरूरी था पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए। ईरान ने ये हमला करके 100% गलत किया है। मासूम बच्चों को मारना कोई बहादुरी वाली बात नहीं है और इसके हक में पाकिस्तान को तो हमला करना चाहिए था। इसने सही किया है, दहशतगर्द को खत्म करना चाहिए। बलोच दहशतगर्द जो है वो ईरान में रिहाइश पजीर है। अपने ख़ानदान समेत जो दहशतगर्दाना अज़ाइम रखते हैं उस हवाले से वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है कि वो आइंदा कोई इस तरह हरकत ना करें। ईरान को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इनका साथ देता रहा और आज पाकिस्तान है मुखालफत में खड़े हैं। वो जो मुखालफत है उनका हिसाब किताब लेना चाहिए, इसमें कोई रियायत नहीं लेनी चाहिए। उसने इराक पर हमला किया, उसने अभी पाकिस्तान पर हमला किया। वो उसने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, उसने वाम की जो सालमियत है उस पर हमला किया करके उसने पूरी दुनिया में के अंदर एक गैर जिम्मेदार मुल्क होने की वो कहा
हक अदा किया। पाकिस्तान न शाम है, पाकिस्तान न इराक है, पाकिस्तान अपना दिफा खुद जानता है और पूरी कौम जो है वो पाक आर्मी के साथ है। इस हवाले से पाकिस्तान सीरिया और इराक नहीं है। ईरान को पता ही है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान में हमले किए थे तो पाकिस्तान किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिए थे। तो ईरान को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा उसका दिफाई जो इदारे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 685 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 63,885 पर ट्रेड कर रहा है। गजा में इसराइल के जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस समेत शिमाली और वस्ती गजा पर भी रात भर बमबारी होती रही, जिसमें मजीद 77 फलस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली और वस्ती गजा में ताज़ा सिहूनी हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अलक्सा अस्पताल और देरुल बला अस्पतालों में 29 लाशें लाई गई हैं। गजा के अशिफा अस्पताल में शहीद होने वाले 12 फलस्तीनियों की लाशें लाई गईं। गजा के नवाही कस्बे रोदरान में इसराइली बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे के इलाके तिलकरम का मुहासरा मुसलसल दूसरे रोज भी जारी है। इसराइली फोर्सेज इलाके को घेरे में लेकर घर घर तलाशी कर रही है। कई मकामात पर फलस्तीनियों के साथ झड़पें भी हो रही हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा में अब तक शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 24,620 हो चुकी है। हमलों में 61,830 फलस्तीनी जख्मी हैं। मगरबी किनारे में अब तक 367 फलस्तीनी शहीद जबकि 4,000 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा में सेहूनी जहरियत के बाद हर तरफ हर वक्त मौत के रक्स का समा है। जिंदा बच जाने वाले फलस्तीनियों की हालत भी नागुफ्ताबे है। खुराक की शदीद किल्लत के साथ सेहत की सहूलियात का फुकदान बढ़ता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर खबरदार किया है कि जंग की वजह से गजा की 85% आबादी बेघर है। बेघर फलस्तीनियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। खाने पीने के अशिया, पीने के साफ पानी और अद्वियात के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि लोगों को छत तक मुयसर नहीं। अस्पतालों का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। आलमी इदारे ने कहा है कि अगर फौरी तौर पर इकदाम न किए गए तो गजा में बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है और गजा के मकीन हेपेटाइटिस समेत मुतादिद मूजी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। WHO के सरबराह टेड्रोस एडहानम गैब्रियस ने एक्स पर सेहत के बहरान को धमाका खेज करार देते हुए कहा कि गजा को गैर इंसानी जिंदगी के हालात का सामना है। पीने का पानी, साफ बैतुल खला या इर्द गिर्द को साफ रखने की सलाहियत नहीं। हेपेटाइटिस ए को मजीद फैलने का मौका फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि गजा में जंग के आगाज से अब तक जो तबाहकुन इंसानी सूरत हाल पैदा हुई उसके नतीजे में 10 लाख से ज्यादा लोग भूखे हैं और 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। मोदी की इंतहापसंद पॉलिसियों से मणिपुर में फसादात की नई लहर ने जन्म ले लिया है। मणिपुर में भारतीय पुलिस की जानिब से मई 2023 से शुरू की गई जालमाना कार्रवाइयों से तंग अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। NDTV के मुताबिक अवाम के मुश्तइल हुजूम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए थोपाल पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। मणिपुर बागी गिरोह और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प में 3 फौजी एहलकार शदीद जख्मी हो गए। थोपाल हमले के बाद मोदी की रिजर्व फोर्स की नाअहली खुलकर सामने आ गई। BBC रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 2023 से जारी मणिपुर फसादात में अब तक 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। मिनट के मुताबिक मणिपुर फसादात के दौरान 300 से ज्यादा खवातीन जिनसी दरिंदगी का शिकार हुई हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर कहते हैं कि मणिपुर की आवाम BJP सियासी मकासद में पिस रही है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है कि मोदी हुकूमत मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात को खत्म करने में संजीदा नहीं है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे निगरान वज़ीर मजहबी अमूर नीक अहमद ने कहा है कि मज़ाहिब का एहतराम इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। इस्लाम रवादारी का दर्स देता है, जबर की गुंजाइश नहीं। कराची में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर अनीक अहमद ने कहा कि इस्लाम में अक़लियतों को हुकूक अता किए गए हैं। मुल्की आइन में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि गज़ा के मामले पर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने एहतजाज किया। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सेमिनार से खिताब में दीगर मुकर्रीन ने कहा कि मुस्लिम रियासतों में गैर मुस्लिमों को हुकूक
तसल्लुक हासिल रहे। बाहमी तनव्वुर के बाइस रहना मुआशरे का हुस्न है। उनका कहना था कि इख्तलाफ को हुदूद में रखना चाहिए। बाहमी रवादारी की तालीम वक्त का तकाजा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने लाहौर में मुलाकात की। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अवामी खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पंजाब में 1 साल के दौरान गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। लाहौर समेत कई शहर तरक्याती मनसूबों की तकमील से पहले से ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के बेमिसाल ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह के हवाले से केस की समाअत करते हुए ट्रायल कोर्ट को मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया है। अदालत ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी करते हुए साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर खाविर मानिका को नोटिस जारी कर दिया है। दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की। अदालती हुक्म के बावजूद शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। नाज़रीन, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज भी 603 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 76 अफगान खानदान अपने मुल्क लौट गए। अफगान शहरियों में 176 मर्द, 135 खवातीन जबकि 292 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 58 गाड़ियों पर वतन वापसी का अमल शुरू किया गया। अब तक पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले शहरियों की मजमूई तादाद 4,70,999 हो गई है। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन को 132 रोज मुकम्मल हो गए हैं। मुहिम के दौरान अब तक 2 अरब 57 करोड़ से जायद रुपए वसूल किए जा चुके हैं। इन कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 17,000 से जायद मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार किए गए हैं। लेस्को तर्जमान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 394 मुल्ज़िमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR की दरखास्तें जमा करवा दी गई हैं, जबकि 13 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके उनको 3,21,000 से जायद यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। गेपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम में मजीद 26 बिजली चोर पकड़े गए, जिसके बाद बिजली चोरी की मजमूई तादाद 546 हो गई है। बिजली चोरों पर 4,62,29,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं, जिनमें से 3,98,69,000 वसूल करके कौमी खजाने में जमा करा दिए गए हैं। गेपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन की फील्ड टीमें बिजली चोरी के खात्मे के लिए पुलिस और जिले इंतजामिया के अफसरान के साथ मिलकर घर घर जाकर बिजली के मीटर चेक कर रही हैं। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक क्रैकडाउन का ये सिलसिला जारी रहेगा। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में यूथ कन्वेंशन 2024 का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से नावर मुकर्ररीन और बड़ी तादाद में तलबा तालिबात ने शिरकत की। यूथ कन्वेंशन में नौजवान नस्ल को इलाकाई सूरत हाल, दरपेश मुश्किलात, क़याम अमन और तरक्याती मनसूबों से रुशनास करवाया गया। इस मौके पर साबिक सफ़ीर सादिक खान ने अफगानिस्तान और खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। डॉक्टर साइदा आरिफा ज़हरा ने समाजी तरक्की में ख़वातीन का किरदार नुमाया किया। इख्तितामी तकरीब में कोर कमांडर पेशावर ने शुरका से खिताब किया। इस मौके पर शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के नौजवानों और ख़वातीन ने पाक फ़ौज का भरपूर शुक्रिया अदा किया और मुस्तक़बिल में भी नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करवाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्तर कार्रवाइयों के समरात नजर आने लगे हैं। 7 से 14 जनवरी के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 2 अरब से ज्यादा रुपए वसूल और 261 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये वसूलियां और गिरफ्तारियां इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद और सक्खर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से की गई हैं। 1 सितंबर से के आदाद शुमार के मुताबिक 66 अरब से जायद रुपए वसूल, जबकि मुतादिद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। मुतालिका हुकूमती इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों में हवालदार आफ्ताब अहमद भी शामिल हैं। हवालदार आफ्ताब अहमद ने 31 अगस्त 2023 को मालिक खेल के मकाम पर दहशतगर्दों की जानिब से किए जाने वाले बुज़दिलाना हमले में जाम शहादत नोश किया। उनका ताल्लुक बहावलनगर से था। लवाहिकीन का कहना है कि हमें आफ्ताब अहमद की शहादत पर फख्र है। इस वक्त तो सब्ज हिलाली परचम में लिपट कर आया तो मुझे फख्र हुआ। मेरा बेटा है, उसे शौक था
ये भी अपने वतन की खातिर, मिल्लत की खातिर जान दूँ। मेरे 5 बेटे हैं, अगर इस मुल्क की खातिर कुर्बान करने पड़े तो हम करेंगे। मेरा बेटा बड़ा ठीक सी, मैं प्यार करता सी, मैं थप्पियां पाਉਂਦਾ सी। मेरा बेटा केड़ा, मेरे 5 बेटे हैं, जे वो भी शहीद होंगे ना तो भी मैं बड़ी राजी शहीद होंगे, ये शहीद हो जाएंगे। अम्मी का सारा दिल बड़ा बड़ा है, इन बेटा से मैं बड़ा फख्र है। मुझे बहुत फख्र है, मेरे वालिद शहीद का रुतबा लेके इस दुनिया से चले गए हैं और मेरे वालिद की वजह से मेरी दोस्तों में, मेरे स्कूल में इतनी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है कि वो लोग कहते हैं कि ये शहीद का बेटा है। हमें फ़ख्र है तुम पे कि तुम एक शहीद के बेटे हो, और मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मुझे लोग इतनी इज्जत देते हैं और वो सब मेरे वालिद साहब मुझे दे के गए हैं। मेरे वालिद साहब जितना चाहते थे मैं उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँगा और कुछ बन के दिखाऊँगा और उनके सारे ख्वाब पूरे करूँगा। जिस दिन मेरे बाबा शहीद हुए थे उस दिन मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, उसी बात का मुझे पूरी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। लेकिन मुझे फख्र है अपने बाबा पे, मुझे दुख तो होता है लेकिन मुझे फख्र है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने मजलूम कश्मीरियों की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने के मजीद शहरी इमलाक और असासे जब्त कर लिए हैं। KMS के मुताबिक मोदी हुकूमत ने अपने ताज़ा तरीन अक़दाम में जफ़र अकबर भट्ट, काजी यासिर, मोहम्मद इकबाल मीर, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह और फातिमा शाह समेत हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों के 7 गैर मनक़ूला असासे जब्त कर लिए हैं। इन असासों को भारत के बदनाम ज़माना तहक़ीक़ाती इदारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमात में जब्त किया है। मोदी हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात में सियासी फ़ायदे के लिए गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को फांसी देने के दर पर है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ भारतीय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की खुसूसी अदालत में एक ऐनी शाहिद ने दावा किया है कि यासीन मलिक 1990 में श्रीनगर में भारतीय फ़ज़ाइया के एहलकारों पर फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम था। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA की खुसूसी अदालत ने यासीन मलिक को मई 2022 में एक झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। यासीन मलिक इस वक्त नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। श्रीनगर और मकबूजा वादी के दीगर इलाकों में चस्पा किए गए पोस्टर्स में कश्मीरियों पर जोर दिया गया है कि वो 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाएं। पोस्टर्स में कश्मीरियों से इस दिन मुकम्मल हड़ताल की अपील की गई है। पाकिस्तान ने कश्मीरी हुर्रियत क़यादत पर भारतीय कैंगरूज कोर्ट्स के नाजायज़ दायरा इख्तियार को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि यासीन मलिक के केस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हक़ खुदरादियत के हुसूल के लिए लड़ने वाले कश्मीरी रहनुमा का गैर कानूनी ट्रायल सियासी इंतकाम और भारतीय जाहियत है। गैर मुतशद्दिद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक के गैर कानूनी ट्रायल के नतीजे में मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद और बुनियाद परस्ती में इजाफा हो सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने पाकिस्तान और ईरान की सूरत हाल के हवाले से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा है कि दोनों अतराफ से कुछ मस्बत पैगामात का तबादला हुआ है। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी ने ईरान के DG बराए जनूबी एशिया रसूल मुसवी के समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान के आपस में बरादराना ताल्लुकात और मस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात का मजीद कहना था कि हमें एतमाद को बहाल करना है जिसने हमेशा हमारे बाहिमी ताल्लुकात की तारीफ की है, जबकि दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। खानेवाल में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ बाहु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जय्यद उलमा कराम, मशाइख और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा कि कुरान और सुन्नत के अहकामात पर अमल पैरा होकर ही हम दीन और दुनिया में सुरखरू हो सकते हैं। हम अहकाम इलाही और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ ढालने से ही दीनी और उखरवी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। मारूफ दानिश्वर, सहाफ़ी, अदीब और समाजी शख्सियत मुन्नू भाई को जहान फ़ानी से गुजरे 6 बरस बीत गए हैं। उनकी शख्सियत और काम की एक झलक वर्दा सलीम की इस रिपोर्ट में। मुन्नू भाई का शुमार अदब से वाबस्ता उन बेहतरीन शख्सियात में होता है जिन्होंने अपना फन किसी किताब से नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द चलते फिरते और सांस लेते किरदारों से सीखा। यही वजह है कि उनकी तख्लीक करदा किरदार जीते जागते इंसान मालूम होते हैं। मुन्नू भाई 6 फरवरी 1933 को वजीराबाद में पैदा हुए। उनका असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी था। 1956 में मुन्नू भाई ने रावलपिंडी से अपने सहाफती कैरियर का आगाज किया। बाद अज़ां लाहौर में अमरोज और मसावात में भी रहे। 1982 में रोजनामा जंग लाहौर से
मुंसलिक हो गए। धीमे मिजाज के मुन्नू भाई एक रोशन ख्याल और इंसान दोस्त कलमकार थे, जिनकी तहरीरें आला सहाफती इक़दार की आकाश होती। भुख लगदी है मंग नहीं सकते, मिलता है ते खा नहीं सकते, नहीं मिलता ते रो नहीं सकते, ना रोइए ते सौ नहीं। ड्रामा निगारी भी मुन्नू भाई की शख्सियत का एक मोतबर हवाला है। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए मुतअद्दिद ड्रामे लिखे। उनकी मशहूर तख्लीकात में जजीरा, अजैब घर, प्लेटफॉर्म, झोंक सयाल, सोना चांदी और अबाबिल सहरे फरिश्त हैं, जबकि उनकी मशहूर किताबों में जंगल उदास है, गिरेबान और अजय क़यामत नई आई शामिल हैं। इस कदर अच्छे ड्रामे उसने लिखे, जितना अच्छा फिक्रा मुन्नू भाई लिखता था उसके हम असर में कोई ऐसा आदमी नहीं था। बड़ा अच्छा शायर था, बहुत अच्छा कॉलमिस्ट था, डेली उसका एक कॉलम आता था और बड़े बड़े अच्छे ड्रामे उसने लिखे। इंसान बहुत अच्छा था। मुन्नू भाई फलाही कामों में भी हमेशा पेश रहे। वो थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के इलाज के इदारे सुंदस फाउंडेशन के बानी चेयरमैन भी रहे। 2007 में उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 19 जनवरी 2018 को मुन्नू भाई इस जाने फानी से रुखसत हो गए। मुन्नू भाई आज हम में नहीं, मगर उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकाजात में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। ताहम बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के साथ साथ तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाई रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकाजात में मौसम शदीद सर्द रहा। नाज़रीन, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब इन दिनों शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासिर और तालीमी इदारों में हाज़री खासी कम दिखाई देती है। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, आगाह कीजिएगा, शदीद सर्दी और धुंध की वजह से मामूलात ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर हो चुके हैं? मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध और सर्दी का राज है। शदीद सर्दी की वजह से जहां मामलात ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं, वहीं स्कूलों और कॉलेजों में हाज़री कम देखने में आ रही है। माहिरीन सेहत जो है उनका ये कहना है कि इस शदीद ठंडे मौसम के अंदर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, गर्म मशरूबात और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल किया जाए और ख़ास तौर पर जो बच्चे जो हैं उनको सर्द हवाओं से बचाया जाए। और इस शदीद धुंध की वजह से जहां ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं, वहीं पर मोटरवेज़ M4 और M5 को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है और मोटरवे की पुलिस की जानिब से भी शहरियों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें धुंध के मौसम के अंदर और कोशिश ये करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। महकमा मौसमियात की अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सर्द मौसम और धुंध का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक बरकरार रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है, जबकि चमन और ज़ियारत में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अजीज़ मरी से। जी बिल्कुल, सूबे के बेशतर अजला में जो है मौसम सर्द और मुतला जो है जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान बताया जा रहा है, जबकि कोयटा, ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, नौशकी, ज़ियारत और दीगर इलाकों में जो हल्की बारिश के साथ जो है पहाड़ों पर जो है बर्फबारी का भी इम्कान बताया जा रहा है। इस तरह अगर साहिल इलाकों की बात करें तो इस जीवनी का जो दर्जा हरारत है इस वक्त जो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गवादर का जो दर्जा हरारत है इस वक्त जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है। क्योंकि महकमा मौसमियात का यही कहना है कि सर्दी की जो लहर है वो मजीद जो है बरकरार रहेगी। जी नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाके इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की वजह से लोगों के मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं और आमदोरफ्त के मसाइल भी दरपेश आ रहे हैं। सख्त सर्दी की वजह से नदी नालों और घरों में पानी के नलकों में बर्फ़ भी जम चुकी है। स्कर्दू शहर में आज दिन का कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बालाई इलाकों में -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की।
تو سب سے پہلے لیہ کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکردو میں -9، کالام -6، کلات -4، جبکہ دیر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔